My dear students, Namaste to all of you. I am Sushant Kumar Singh, your SST teacher. Democracy and Government. Class 6, Chapter 22. Democracy and Government. Dear student, this is very important topic because student, we know that our country is democratic country. Our country has also democracy. So that we have to know about the importance of democracy, meaning of democracy, and what is the role of government, because we elect our government. So that this is our responsibility to know about the importance of government and work of our government. So student, now I am going to introduce you about democracy. First of all, you have read in the previous chapter that we, the people of India, come from different race, religions, caste, and speak different language in such as a diverse society. Different demands arise, which are often in conflict with the other. Some people think that their problems are more important, so they should be solved first, whereas may think that their problems should be given top priority. In such a conflicting situation, the position attitudes of live and let life is the best courses to amicably settle the disputes and solve the problems. The democratic way of life based on equality, fraternity, and justice paved the way and prepare the citizens to mutually resolve the disputes arising out of vasted and varied interests. So, dear students, why democratic country is better than other country like why democracy is better than dictatorship, monarch? This chapter will prove you about the importance of democracy. Dear students, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमारे को बहुत इसका बेनिफिट मिलता है और ये हमें जानना चाहिए कि डेमोक्रेटिक में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं. वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट. आप जो वोट करते हैं, आपके पेरेंट, आपके जो गार्जियन होते हैं, आपके आस पड़ोस में आप लोग देखते हैं कि 5 ईयर्स पे वोटिंग होता है और आप अपने MP MLA जो इलेक्ट करते हैं ना बच्चों, उनका काम होता है कि आपके एरिया को डेवलप करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है ना बच्चों, हेल्थ, सैनिटेशन, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है. Democracy, that is why India opted democracy. Why India opted democratic government? Dear students, let us remember that democracy is just not a form of government, but is a way of life. Democracy is a way of life, my dear student. It teaches us to provide equal opportunity to everyone without any discrimination. Democracy is a way to provide us equal opportunity. कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होता है. आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमारे देश में, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है और हम सभी जनता मिलकर के अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. इसलिए बच्चों, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं बेस्ट हूँ, मैं अगर पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं रिच हूँ तो बेस्ट हूँ. ऐसा कोई नहीं मैटर है. एवरीवन इक्वल. और हमारे संविधान ने हमें ये दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें राइट दिया है. इट मेक अ कंसस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इम्प्लिक चिल्ड्रेन. इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग. इन डेमोक्रेसी एवरीवन कैन शेयर इक्वल फ्रीडम इन सोशल, इकोनॉमिक and political fields. In case of conflicting interests issue an extreme approach, the harmony can be brought through tolerance and self-discipline. In a way, it strike balance in the society. So democracy हमारे सोसाइटी को बैलेंस करता है. स्टूडेंट, ये आपको जानना होगा क्योंकि इसमें सबको इक्वल राइट है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है. Many a time a question arises that when a large number of people are involved in taking a decision of reaching at a consensus
whose view should be accepted. In democracy, the opinion of majority is accepted, but the opinion of minority is also respected. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये एक कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में बन रहा होगा तो मैं उस कन्फ्यूजन को अभी दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों डेमोक्रेसी में आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में, जिसे हम इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पार्टी जीत गई, जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जिसकी गवर्नमेंट बन रही है, उसका ही राज्य चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर माइनॉरिटी जो है, जिस पार्टी को कम सीट आया, उसका भी हम विपक्ष में क्या करते हैं, रहते हैं वो लोग अपोजिशन में, और उनका भी रिस्पेक्ट किया जाता है, उनके बात को भी देखा जाता है, सुना जाता है। ये है डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है इसमें हर एक बंदे का हर एक मैटर सुना जाता है। डेमोक्रेसी में किसी को भी डिनाई नहीं किया जाता है, किसी को भी ऐसे नहीं कि कास्ट के नाम पर, क्रीड के नाम पर, स्टेटस के नाम पर किसी को आप बैक कर दें, किसी को आप हटा दें। ऐसा कोई प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में बच्चों नहीं होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हम सभी कहते हैं और सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर है। अगर रूलिंग का कोई सिस्टम है तो डेमोक्रेसी इज द बेटर सिस्टम। अब इसके इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। यस, दैट्स अ सो इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यस, लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट। टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स थ्रू डिसीजंस, persuasions and compromise, there is no place for coercion and violence in democracy. Democracy stands for gradual change in society in the social, economic and political fields. Democracy maintains harmony and balance in the society to root out authoritarianism and dictatorship. Democracy includes the habit of obeying the rules and regulation of the state. It helps in maintaining peace. तो बच्चों आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। आपने देखा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, persuasions एंड compromise, देयर इज नो प्लेस फॉर coercion एंड वायलेंस इन डेमोक्रेसी। किसी तरह के वायलेंस का, किसी तरह के हल्ला गुल्ला का जैसे होता है, कोई जगह डेमोक्रेसी में बच्चों नहीं है। हमारे देश में हर तरह से मेंटेनेंस करने का काम, चाहे पीस हो, चाहे आप देखिए हारमोनी हो, बैलेंस करने का काम डेमोक्रेसी का है। डिक्टेटरशिप का यहाँ पे कोई जगह नहीं है बच्चों। अगर चाहे कि कोई डिक्टेटर बन जाए, वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। पॉवर्टी हो, हंगर हो, इलिटरेसी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनइक्वालिटी हो, ये सबको मेंटेन करने का काम डेमोक्रेसी का है। आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों का आप मेंटेन करने का काम डेमोक्रेसी का है। क्योंकि आप बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको इंट्रोडक्शन भी बोला जाता है, जो हमारे संविधान का परिचय है। आप अपने संविधान के परिचय से ही, इंट्रोडक्शन से ही समझ सकते हैं कि कितनी गुणवत्ता, कितना क्वालिटी हमारे कंट्री के संविधान में है। तो काहे नहीं हमारे कंट्री में रहेगा? क्यों नहीं हमारे देश के सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जब हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, सब चीज़ हमारे संविधान में मेंशन है। बच्चों आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग इसमें सोलमनली रिजॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बच्चों इसमें सब चीज़ का बात किया गया है, जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, इक्वालिटी भी है। तो ये सारे मैटर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इंट्रोडक्शन का ये पेज है बच्चों, फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्शन का होता है, परिचय जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पेज है। आप देख सकते हैं प्रेम्बल, और जब सभी चीज़ें इसमें मेंशन है, और ये प्रूव करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से किसी को भेदभाव नहीं किया गया है। तो जब आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं किसी के साथ? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी में जो गोल्स है वो बहुत ही बेहतरीन है, हमारे लोगों के लिए है, हमारे देश के लोगों के लिए है। चाहे वो किसी सेक्शन से हो, किसी सोसाइटी से हो, किसी कास्ट, रिलीजन, किसी धर्म से हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर हमारे संविधान में देखा गया है। और ये डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वैसे करेंगे काम।
representative democracy. In a vast country like India, it is difficult to devise a method for the direct participation of the people in the governments of the country. Therefore, representative democracy has been adopted in India. Under this system, some people elect their representative who govern on their behalf. This means India is indirectly governed by people through their elected representative like Panch, means India is Panch, municipal councillors, members of legislative assemblies और members of parliament. बच्चों, हमारा देश बहुत भास्ट है ना. आप जानते हैं कि हमारे देश में कन्याकुमारी, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का एरिया बहुत वास्ट है. और इसमें हम चाहें कि पीपल डायरेक्ट लोग अगर रूल करें तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. इनडायरेक्टली हम रूल करते हैं, डायरेक्ट हमारा रूल नहीं है. लेकिन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों, जैसे एमएलए को हम जो चूज करते हैं स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के लिए, एमपी को चूज करते हैं सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के लिए, चाहे हमारे पंचायत लेवल पे मुखिया को इलेक्ट करते हैं, म्यूनिसिपल काउंसलर को इलेक्ट करते हैं बच्चों, पंच को इलेक्ट करते हैं. ये सब हमारे लिए काम करेंगे. हम इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो उनको इलेक्ट कर दिया इसका मतलब वो राजा हो गए, वो रूलर हो गए. ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों. बिल्कुल ये कंसेप्ट आपका माइंड से निकल जाना चाहिए कि किसी को आपने इलेक्ट किया तो इनडायरेक्टली आप रूलर हैं. आपने इलेक्ट किया है और आपके बातों को उसको मानना पड़ेगा, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वो पंच हो, कोई भी हो. आपके एरिया का डेवलपमेंट का, सैनिटेशन का, हॉस्पिटल, स्कूल, जितनी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए कॉमन पीपल को, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो करेगा, क्योंकि आपने उसको इलेक्ट किया है. दिस इज योर पावर माय डियर स्टूडेंट्स. कॉमन पीपल हैज मोर पावर इन डेमोक्रेसी कंट्री, सो दैट वी कैन से democracy the better way of government. Do you know dear student, this is very important. We Indians must feel proud of that fact that our constitution makers gave equal voting rights to men and women both after independence when the constitution was enforced, unlike that of US and UK, France, where women had to fight for years to get the right to vote. In the United States of America, women got the right of vote in 1920. In UK, they were giving voting rights in 1928, whereas in France and women were given the right to vote in 1944. Dear students, आपको तो सुनकर के गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान में जब बना तो उसी में मेंशन कर दिया गया था कि जो मेन का राइट है वो वुमेन का राइट है. इसमें वोट करने का राइट दोनों को इक्वल है, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलना है वुमेन और मेन को. हमारी सोसाइटी में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वुमेन मेन को लेकर के नहीं किया जाएगा, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया. जबकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े देशों में महिलाओं को, वुमेन को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है वोटिंग राइट के लिए बच्चों. लेकिन हमारे देश में तो हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने पहले ही वुमेन को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी बच्चों दिया है. इसलिए यह हमारे लिए गर्व की बात है. पीपल्स पार्टिसिपेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल पार्टिसिपेशन. Participation of people in the election process of country at various level is based on universal adult franchise, which means all citizens of India who are 18 years of age and above are eligible to cast their votes. If you are, dear students, if your family members, if your elder brothers, if your uncle 18 years old, अगर उनका एज 18 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है तो उनको राइट है वोट देने का हमारे देश में, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. याद रखेंगे बच्चों आप लोग, अगर आप भी 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको राइट मिल जाएगा वोट देने का. ये हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया जाता है इंडिया में बहुत अच्छी तरह से. और पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड इवन देयर आफ्टर द इलेक्शन. After the election, it is also to seen when the government is formed by the elected representative. It day-to-day life, people closely watch the activities of various departments of the government and they criticize also, if required. They also guard their own rights and freedom given to them by the Indian Constitution. बच्चों, जो हमारे ये नहीं कि गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट आपने चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया, आपने वोट करके इलेक्ट कर दिया,
इसका मतलब नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, किसी तरह से डेवलपमेंट का काम झूठ मूठ का कुछ भी करते रहे और आप चुप रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आवाज़ उठाना है, ये राइट है, आपको राइट दिया गया है और उस राइट के अकॉर्डिंग आपको आवाज़ उठाना है। आपको गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलना है और उसको बताना है गवर्नमेंट को कि आपको कैसे काम करना है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है, आपको क्यों आपको इलेक्ट किया गया है, क्यों आपने सरकार बनाया। आप भूल गए। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको याद दिलवाएंगे कि भाई आपको इस तरह से डेवलपमेंट करना है, इस सेक्टर में इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक सेक्टर को उनको याद दिलाना है, बताना है, क्रिटिसाइज करना है। ये नहीं कि वोट कर दिए, वोट दे दिए और उसके बाद सो गए, फिर तो कैसे काम होगा। हमें हमेशा जगे रहना है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। आप देख सकते हैं बच्चों, क्यू आउटसाइड अ पोलिंग बूथ, अब वुमेन कास्टिंग, इस तरह से वोटिंग होता है हमारे देश में बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। व्हेन अ टर्म ऑफ गवर्नमेंट एट एनी लेवल एक्सपायर, जब बच्चों एक टर्म होता है 5 ईयर्स का हमारे यहाँ, वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर इलेक्शन कराया जाता है, फिर दोबारा वो इलेक्शन होता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हाउ डू वी गवर्न ऑल सेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, in our daily life we observe that many activities are always going to all throughout the country. These are building of roads, generation of electricity, running of hospital, dispensaries, imparting education, transportation, good of passenger, defending of the borders, etc. Who organize and controls all this, who makes laws to regulate such activities, इट इज़ द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल। तो बच्चों, हमें आप देख रहे हैं गवर्न ऑल से बिल्डिंग रोड्स हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, इम्पार्टिंग एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, हु ऑर्गेनाइज कंट्रोल्स ऑल ऑफ दिस, हु मेक हाउ टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज, इट इज़ द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स दैट ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज अराउंड अस। The government not only makes law for all of but execute that as we, in case some people breaks these laws, they are punished also। बच्चों, ये सब तो डेवलपमेंट के काम होते हैं, लेकिन कॉमन पीपल भी अगर किसी तरह से लॉ को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस समय उनको भी पनिश्ड होना पड़ेगा। ये हमारे कानून में है कि पनिशमेंट सबको इक्वल मिलना है। For good governments as a smooth function of various departments, the duties and responsibilities are divided among the government at different levels। और गुड गवर्नमेंट्स के लिए और फंक्शन के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे बच्चों डिवाइड कर दिया गया है, ताकि सही से काम डेवलपमेंट होता रहे हमारे देश में। देखिए कैसे है लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक है इसका। कीपिंग इन माइंड द लार्ज एक्सटेंट ऑफ कंट्री, वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, the responsibility of government have been divided into governments at 3 levels. They are government at the national level, works for the whole country, is called the central or union government. Government at the state level works within its own territory of, for example, the government of Haryana works only the state of Haryana. The government of Kerala looks after the Kerala state only, and likewise, the lowest level of government is at the village level, which is called the government at the grassroots level. The Gram Panchayat come under this category। बच्चों, 3 तरह की हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है, याद रखेंगे आप लोग। हमेशा अपने माइंड में इसको कैच कर लेना है, बंद कर लेना है दिमाग में, कि आपकी जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेंट्रल भी बोलेंगे, यूनियन भी बोलेंगे, कोई गलत नहीं होएगा उसमें। आपका जानते हैं दूसरा होता है हमारा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। आप देखिए स्टेट लेवल में, जैसे हम बिहार के स्टेट के हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। पूरे बिहार का एरिया जो है वो देखेंगे, उसमें किस तरह का डेवलपमेंट करना है, ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट में स्टेट पुलिस हो गया, स्टेट का एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये सारे काम स्टेट को देखना होता है। स्टेट के रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। दूसरा आप देखेंगे ग्रास रूट की एक गवर्नमेंट होती है, जो हमारे यहाँ अक्सर हम गाँव में है तो तुरंत आपको पता है, जैसे पंचायत है, पंचायत हो गया विलेज लेवल पे,
ठीक है ना बच्चों। ग्राम पंचायत कम अंडर दिस गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, ये थर्ड है गया आप लोएस्ट लेवल की गवर्नमेंट। तो बच्चों इसलिए इसको डिवाइड किया गया है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की डेवलपमेंट सही ढंग से हो, वर्क जितने सारे हमारे इस पॉलिटिकल में हैं लोग वो सही ढंग से करें। इसलिए 3 तरह से हमारे यहाँ गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है कि डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव हो, सही ढंग से हो बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतना आप लोग समझ गए होंगे। कीवर्ड्स है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें सेकंड वीडियो लाऊंगा, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।